नमो वितरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो परिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयगीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंच नमुकारो सर्वपावपणासनो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसीं मंगलाणं च सव्वेसे पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद ચાલો કરો વાતચીત શું નામ તારું મુદિત ભંસાલી શું મુદિત ભંસાલી મુદિત ભંસાલી મોદિત તારું નામ કિંજલ અંજન જો ભાઈ વાતચીત કરજો કે કંઈક પ્રશ્ન અંદર નેચરલી આવતો હોય કાત્યાનંદજી એક તરફ આપણને સમજાય છે કે જે કંઈ પણ થયું છે અને થવાનું છે એ વ્યવસ્થિતના આધીન છે અને છતાં પણ આપણે બુદ્ધિના હિસાબે આગળનું પ્રોજેક્શન કરીએ છીએ ઘણી વખત ચિંતા થાય છે ડર લાગે છે તો એનું કારણ શું દર્શનો લાગે એટલે કે કાંઈ પણ હોય હવે સમજો ભવિષ્યમાં આવું થશે કે ના થાય આપણે પ્લાનિંગ જે કરીએ છીએ પ્લાનિંગનો વાંધો નથી કોઈ પણ બાબતનું પ્લાનિંગ કરવું એ બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી કરેક્ટ છે પણ એ પ્લાનિંગ કરતી વખતે આપણી અંદર જે સમજ છે કે અલ્ટિમેટ વ્યવસ્થિત શક્તિને આધારે બનવાનું છે કરાયો એ સમજ સાથે પ્લાનિંગ કરવો ના કરવું પડે એવું નહીં કરવું પડે એટલે વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ કરવું જ પડે ને એટલે વાંધો નથી પણ અંદર સમજ શું હોવી જોઈએ વ્યવસ્થિત શક્તિના આધારે અલ્ટિમેટ વ્યવસ્થિત શક્તિના આધારે છે તમે પ્લાનિંગ કર્યું એ વસ્તુની તમને જરૂર જ ના પડે એવું પણ બને અને તમે જેનું પ્લાનિંગ નથી કર્યું એ વસ્તુની તમને જરૂર પડે કારણ કે ભવિષ્યના સંજોગો શું આવે એનું કશું કહેવાતું નથી એમ સમજ પડી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરનું મકાન લીધું ધરતીકંપના બીકને લીધે ખ્યાલ આવ્યો? પણ નદીમાં પૂર આવે ને તો પાણી કઈ આવી જશે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર આવી એટલે એવી રીતે દરેક આપણી આખી લાઈફ આ તો એક વાત કરી રીતે પ્લાનિંગની અથવા કોઈ પણ વસ્તુ કંઈ પણ આપણે કરી રહ્યા છે એ આપણી સમજમાં અંદર એટલું હોવું જોઈએ કે અલ્ટિમેટ એ વ્યવસ્થિત શક્તિના હાથમાં છે આપણા હાથમાં નથી એ પ્લાનિંગ તો કરવાનું જ પણ એ પ્લાનિંગ કરતી વખતે શું થાય છે કે બુદ્ધિ અલગ અલગ સિનેરીઓ બતાડ્યા છે બતાડે એ બતાડશે એમ કે ભાઈ આ કરીશું તો એમાં આટલો બેનિફિટ છે આ કરીશું તો આમાં આ છે બધું ગઢ આપણા સાદા શબ્દોમાં કહીએ ઓવર થિંકિંગ તો ચાલ્યા કરે એનો વાંધો નથી પણ અત્યારે પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશનમાં આપણને શેની નેસેસિટી છે
શું જરૂરિયાત છે અત્યારે આજે એ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. તમે 10 વર્ષ પછી મને આ જરૂર પડશે એનું અત્યારથી પ્લાનિંગ કરવાની જરૂર નથી એમ કહેવા બરાબર એવી રીતે કરવાનું કારણ કે એનું બહુ જ ચાલશે એનું. જેમ આપણે કોઈ જગ્યાએ જઈએ છીએ તો એનું પ્લાનિંગ તો કરીએ છીએ ને એમ બાય બસ જવું બાય ટ્રેન જવું બાય પ્લેન જવું કેટલા દિવસનું રોકાણ છે કેટલી નાઇટ છે શી વસ્તુની જરૂરિયાત પડશે એની વેધર ત્યાંની કેવી છે શું છે બધું આપણે એનું કરીએ જ છે એનો વાંધો નથી. પણ જેનું પ્લાનિંગ નથી કર્યું એની જરૂરિયાત ઊભી થઈ જાય અને જે આપણે વસ્તુ જોડે લઈને ગયા છે એની જરૂર જ ના પડે. બધું આપણા અનુભવમાં છે ને પ્લાનિંગ કરવાનું. પણ એ જે પ્લાનિંગ કરવાનું છે ને એટલે પ્રશ્ન મારું એવું જે છે કે પ્લાનિંગમાંથી એ ઓવર પ્લાનિંગ થઈ જાય છે કે આપણે તમે કીધું એવી રીતે કે હું પ્લાન કરું છું પણ એની બારે શું થશે તો એવી રીતે એ જે એટલું બધું બહુ નહીં જવાનું નોર્મલ પછી આપણું વ્યવસ્થિત ઉપર છોડી દેવાનું એમ. કારણ કે જે સમયે જે જગ્યાએ જે વસ્તુની આપણે જરૂર છે ને એ તમને વ્યવસ્થિત સપ્લાય કરશે ઓટોમેટિકલી તમને એ વસ્તુ મળી આવશે. બસ ભલે તમે જોડે નથી લઈ ગયા પણ એવી કોઈની સાથે કંપની થઈ જાય ટ્રેનમાં કંપની થઈ જાય કોઈ પરિચિત વ્યક્તિ મળી જાય એવી રીતે. હવે તમે ટેક્સીનું પ્લાનિંગ કર્યું હોય પેલો કે અમે કારમાં 2 જણા છે તમે 2 જણા આવો મજા આવશે આપણે કંપની ફરવાની આવું બને ઓવર નહીં જવાનું. ઓવર કોને કહેવાય કે હજુ 2 વર્ષની છોકરી છે ને તમે એને પરણાવવાની ચિંતા કરો એને ઓવર કહેવાય. એ ઓવર થિંકિંગ છે. એનો સમય આવે ત્યારે બરાબર છે. જ્ઞાનવિધિ થયેલી છે તમારે? નથી થઈ? એમ ને સોનલબેન શું થાય? મમ્મી થાય. હમણાં એમના ક્લાસમાંથી જો આવ્યો એ તમારું ટેન્શન કરતા હતા. લોકો આવ્યા છે એટલે કીધું બેસાડી દે છે. સારું. આ જે છે ને એ સાયન્સ છે અને એ સાયન્સ એ એક્ઝેક્ટનેસ ઉપર હોય અને કોઈ પણ ધર્મ હોય એ આખો માન્યતા ઉપર હોય. એટલે આ કોઈ ધર્મ નથી એ કશું કરવાનું નથી ખાલી એને વાતને સમજવાની છે બસ. અને આપણું કોઈ પણ વર્તન થઈ જાય છે એની પાછળ આપણી સમજ કામ કરે છે. શું કામ કરે છે? સમજ. જેવી સમજ બદલાય એટલે એની મેળે વર્તન બદલાઈ જ જાય. ધર્મમાં લોકો વર્તન બદલવા પાછળ છે અને એ બની શકે નહીં એટલે એને અક્રમ વિજ્ઞાન કહે છે. અક્રમ વિજ્ઞાન ખાલી સમજવાથી જ મુક્ત થઈ જાય માણસ.
जैसे अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड गुजराती और आई कैन स्पीक इन हिंदी? हिंदी इंग्लिश चलेगा, गुजराती समझता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा, मारवाड़ी है। ना ना वांधो नहीं, बराबर છે. तो हम किसी से अगर बात करते हैं, हाँ जी, सपोज मैं इनसे बात कर रहा हूँ और अच्छा। मैंने कोई ऐसी वाणी बोली कि इनको बुरा लग गया, बराबर मेरा है. इंटेंशन कोई हर्ट करने का नहीं था, नहीं था, बोलने का बराबर नहीं है. था, फिर भी और उन्होंने वो गलत पर्सपेक्टिव में ले लिया। हाँ, तो वो मेरी अज्ञानता है बोलने की कि उनकी अज्ञानता है कि मुझे उनकी समझ नहीं अज्ञानता आया। है, उनकी अज्ञानता है. जिसको असर हुआ उसकी अज्ञानता है, आपकी नहीं है. व्यापारिक में तो हम वही बोलते हैं कि अगर कोई मेरे वजह से रोता है, भले मेरा इंटेंशन नहीं है, तो हम बोलते हैं कि यार इसने उसको रुला दिया। तो व्यवहार में तो वही बोलेंगे ना, क्योंकि व्यवहार व्यवहार क्या मतलब है, वो निमित्त को पकड़ते हैं. और ज्ञान जो है वो जिसको असर होता है उसको पकड़ते हैं. तो आपने तो बोला, मगर मेरे को क्यों असर हुआ? तो वो असर नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए कि किसी की बात का बुरा लग जाता है, हाँ हाँ, लग जाता है और बहुत दुखदाई होता है. आजकल एक दूसरे को वाणी से बहुत हर्ट करते हैं हम, बहुत करते हैं. और कभी तो हमें पता भी नहीं चलता है कि इसको हर्ट हुआ या नहीं हुआ. जब उसका रिएक्शन आता है तभी पता नहीं चलता है कि मेरे से क्या हो गया, मैंने क्या बोल दिया, ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं है. हम ऐसा सोचते हैं, मगर फिर भी उसका जो रिस्पॉन्स है वो पहले जैसा नहीं है, उतना हम समझ जाते हैं. तो यहाँ इंटेंशन वो बहुत ज़रूरी है. हमारा इंटेंशन किसी को भी दुख देने का नहीं है, फिर भी हमारे मन से, वाणी से और काया से अगर किसी को भी हर्ट होता है तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल. रिस्पॉन्सिबल नहीं. फिर भी अगर उसको दुख हुआ है तो हम उसके बारे में पश्चाताप कर सकते हैं, समझे, ताकि हमारी भी असर कम होए और उसके भी असर कम हो जाए. हमारी गलती है नहीं, हमको ऐसा लगेगा, मगर फिर भी वो सामने वाले को तकलीफ हो रहा है ना, सामने वाले को तकलीफ हो रहा है. तो इसी वजह से जब भी हमारी गलती नहीं है फिर भी सामने वाला हमारी गलती मानकर परेशान हो रहा है तो उसको हम स्वीकार करते हैं, तो उसको अच्छा लगता है कि चलो भाई उन्होंने कम से कम तो सॉरी तो बोल दिया, है ना. तो उनको भी पता चल गया कि ये सब हो गया है. तो ऐसा और कर सकते हैं. मगर सबसे बड़ी बात क्या है, इंटेंशन. वास्तव में हम बोल देते हैं, बोलते नहीं हैं. वो हमारे बस की बात नहीं है. बोल देते हैं. अगर हम खुद बोलने वाले होते तो किसी को भी दुख न हो ऐसा बोलते हैं, मगर ये हमारे बस की बात नहीं है. और ये हमारे सबका अनुभव है. हम किसी को बोलने का तय करते हैं, वो आदमी आके बैठता है, हम बोल नहीं पाते. और नहीं बोलने का तय करते हैं, वो आएगा, मैं कुछ बोलना ही नहीं, बात ही नहीं करना है, मगर वो आते ही अपनी बात शुरू हो जाएगी. होता है कि नहीं होता है? हाँ. आपका स्टडी कहाँ तक का है? सीए की सीए किया है, वेरी गुड. જે સામેવાળાને ખરાબ લાગે, है સામેવાળાને જે ખરાબ લાગે, ભલે ઇન્ટેન્શન ન હોય, પણ સામેવાળાની એક્સપેક્ટેશન હોય કે જે બી હોય એને ખરાબ લાગે, એને શું વિચારવાનું કે સામેવાળાનું જતું કેવી રીતે કરાય? સામે
એમનું જતું કરાય એટલે એ જે બી બોલે છે એ આપણને ખરાબ લાગે છે, હર્ટ ફીલ થાય છે, એ કેવી રીતે ઓછું કરી શકાય? પહેલાં તો પોતાના ઉપર લેવું જોઈએ કે મારે આ સાંભળવું પડે છે, मेरे को यह सुनना पड़ता है, वो मेरे ही कर्म का फल है, और जो बोलता है उसको बोलने का कर्म का फल है, हमको सुनना पड़ता है, वो हमारे कर्म का फल है। इसमें वो सामने वाला जिम्मेदार नहीं है, हमें सुनना पड़ता है। वो हमारी अब जब हम हमारी ओर देखेंगे तो उसके शब्द का असर नहीं होगा, मगर इस शब्द का असर क्यों होता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, उसका नाम तक नहीं दिया, फिर भी मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलता है, हम ऐसा लेते हैं। मगर वो हमको बोलता है, हमको डांटता है, अच्छा या बुरा, अच्छा का भी असर होगा। आपके बारे में कोई अच्छी बात करेंगे उसका भी असर होगा, कोई बुरी बात करेंगे जो आपको पसंद नहीं है उसका भी असर होगा, क्योंकि ये बॉडी जो है वो इफेक्टिव है। क्या है? इफेक्टिव है, और कोई भी इफेक्ट कॉज के बगैर नहीं होता है। पहले कॉज, बाद में इफेक्ट, फिर इफेक्ट, फिर कॉज, ऐसा होता है। तो ये कॉजेज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉजेज, इसका एक जो साइकिल है वो चलता ही रहता है। जैसे भी बात हुई ना, कोई कुछ भी बोलना किसी के बस की बात नहीं है, मगर हमें क्यों दुख होता है? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ये मेरे को ऐसा क्यों बोलता है, मेरे को बोलता है, मेरे को ऐसा बोला। हाँ, आ जाता है। जैसा आपने कहा कि बोलना अपने हाथ में नहीं होता है, हाँ, मैं उसको ऐसा मानूं कि एक्शन किसी ने किया, वो एक्शन हमारे हाथ में नहीं है, बट रिएक्शन तो हमेशा हमारे हाथ में होता है। नहीं, वो भी हो जाता है। अगर मेरे में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, तो नहीं आएगा। नहीं, अगर 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 5 इंद्रियों पे अगर कंट्रोल है कि उन्होंने मुझे मार दिया, मैं सोचूंगा नहीं उन्होंने मुझे डांट दिया, ये उनका इंटेंशन, जैसे माँ बाप बच्चे को डांट देते हैं, अदान बराबर है। तो बच्चे ने अगर इंटेंशन पॉजिटिविटी होगी तो वो सोचेगा कि नहीं, मेरे भलाई के लिए मारा कि मैं ताकि आगे जाके चोरी ना करूँ, या किसी को गलत नहीं बोलूँ, या गलत हाँ, शब्द का तो- उपयोग नहीं करूँ। हाँ, तो मेरे में रिएक्शन कैसा आएगा कि सरल भाव आएगा। वो किस समझ से लेता है, इसके पीछे समझ काम करता है, समझे? माता पिता डांटते हैं, टीचर डांटते हैं, तो उनका इंटेंशन हमारे संस्कार के लिए होता है, हमको शिक्षा करने के लिए नहीं होता है। तो मगर वो जब हम पॉजिटिव लेंगे तब असर नहीं होगा ना, पॉजिटिव लेंगे तब। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा कि आपकी समझ क्या है वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी पर असर का। तो वो कैसे करे कि हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव कैसे ले लें? वो सामने वाले को हम उपकारी मानेंगे, सामने वाला कैसा भी करता है मगर वो हमारे लिए उपकारी है। उपकारी क्यों है? कि उस व्यक्ति के साथ ही हमारे कर्म के ऋणानुबंध है, तभी तो उससे मिलना हुआ, तभी तो उससे मिलना हुआ है। और ये जो लेन देन का हिसाब है, फिर वो वाणी से हो, बर्तन से हो या मन से भी हो, वो हिसाब क्लियर होता है। जैसे सीए की भाषा में अकाउंट क्लोज होता है, डेबिट क्रेडिट हो गया तो फिर क्रेडिट फॉरवर्ड रहा नहीं।
इस तरह जो अकाउंट क्लोज नहीं होता है उसका ही कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति से हमें रोज मिलना होता है उसके साथ हमारा कोई ना कोई क्रेडिट डेबिट अकाउंट उसके साथ है, हिसाब है, मगर वो कर्म के हिसाब है, इसलिए हम इसको जल्दी से नहीं समझ पाते कभी कभी, और हम खुद उसकी वजह से पजल में आ जाते हैं और वो पजल का सॉल्यूशन हम निकाल नहीं पाते हैं। एक शब्द किसी ने कहा तो वो घंटे भर, दिनों तक, महीनों तक और सालों तक चलता रहता है। तो कितना असर आपने इसको सीरियसली आपके ऊपर लिया है, इसके पर आधारित इसका असर है। खुद को जो असर होती है वह अपनी समझ पर डिपेंड करता है, हाँ, लेकिन उस पर सामने वाले के इंटेंशन का कोई इफेक्ट होता है या नहीं? होता है। अगर उसका इंटेंशन हमें दुख देने का है लेकिन अगर मेरी समझ सही है तो क्या मुझे उस बात की असर होगी या नहीं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। वो सामने वाला दुख देना चाहते हैं मगर हमारी समझ अगर एग्जैक्ट है तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है, समझे? क्योंकि आप उसको पॉजिटिव रूप में लेते हो ना कि भी मेरा इसके साथ जो कर्म का हिसाब है वो आज वो मेरे को सुनाने के लिए ही आया है। मैं क्या कहता हूँ वो उसको सुनना ही नहीं है, समझे? तो इस कर्म के हिसाब से हम मुक्त हो रहे हैं, तो इसलिए हमें इसका दुख नहीं लगेगा। जब हमें इसका दुख नहीं लगेगा तो 100% दुख उसके पास रहेगा। तो वास्तव में वो दुख देने ही आया है मगर हम उसका स्वीकार नहीं करते हैं तो 100% उसके पास रहता है। तो इंटेंशन सिर्फ कर्म चार्ज करने का एक साधन है, हाँ। इट्स नॉट सामने वाले को सुख या दुख देने का साधन ना, नहीं है। साधन नहीं है। हाँ, सामने वाले को दुख उसकी क्या समझ है उसके आधार पर इसके पर आधारित है। जैसे ज्ञानी पुरुष को कोई दुखी नहीं कर सकता और हम ज्ञानी पुरुष के साथ कैसा भी करें तो भी वो हमें दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका कल्याण हो वही उनकी भावना है। और वास्तव में आप जो भी उनके साथ कर रहे हैं वो आप कर ही नहीं रहे हैं, एक ऐसी भी समझ उसके पास है। आपको कर्ता की ओर से नहीं देखते हैं, वो हो रहा है। जब हो रहा है, इट हैपन्स, तो नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। मगर आपने किया, आपने ही किया तो प्रॉब्लम है। तो हर एक व्यक्ति के साथ हमारे जो अकाउंट्स जैसे भी फीड हुए हैं उस अकाउंट क्लोज करना है। एक तरह से देखा जाए तो किसी को भी सुख या दुख देने की हमारे पास सत्ता ही नहीं है। नहीं है, मगर हम भावना कर सकते हैं, भावना कर सकते हैं, मगर है नहीं। इंटेंशन साफ रख सकते हैं। इंटेंशन साफ रख सकते हैं, मगर हम किसी को सुखी या दुखी हम नहीं कर सकते। उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ है, उसका परिणाम है। जैसे होता है ना, अपने व्यवहार में भी होता है, हम किसी को बहुत हेल्प करना चाहते हैं, उनके लिए हेल्प करते हैं, ऑब्लाइजिंग नेचर है, मगर वही ऐसा समझता है आप ही मेरा बिगाड़ रहे हैं। चूज क्या करता है उसके ऊपर है। यस, उसकी क्या समझ है। क्या हम किसी की समझ बदल सकते हैं? हाँ, समझ बदल सकते हैं अगर वो समझने को तैयार हो तो। अगर वो समझना चाहते हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी समझ है जिसके वजह से आप ये
मन वचन काया की जो असर है उससे आप मुक्त रह सकते हैं, ऐसी कौन सी समझ है? तो उसको समझने वाले को समझा सकते हैं। जो सोया हुआ है उसको हम जगा सकते हैं, मगर जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको नहीं जगा सकते। सभी असर बिलीफ की है। किसी भी बात को हम किस समझ से लेते हैं उस पर हमारा सुख दुख का आधार है। जैसे कोई लड़का है, शादी हुई, अब वो अपने हिसाब से रहना चाहता है, तो माता पिता अगर ऐसा समझे चलो भाई इसकी जिम्मेदारी तो वो संभालता है तो अच्छा ही है ना, तो ये संयोग में उनको भी सुख लगेगा। अगर इसी बात को वो समझेंगे कि अब ये मेरे को छोड़ के चला जाता है, तो वही संयोग उनके लिए दुखदायी बन जाता है। संयोग तो एक ही है जाने का, मगर उसके पीछे उनकी क्या समझ है, उस हिसाब से सुख दुख का अनुभव है। सुख क्या है? हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं तो हमें दुख लगता है, और हमें जो नहीं करना है वो करना पड़ता है तो दुख लगता है। जो बात हुई कि हम किसी की समझ बदल सकते हैं, हाँ। लेकिन उसमें भी जो बोलने का ना बोलने का संजोग आता है जिसके थ्रू आप समझ बदलते हो, हाँ, हाँ। वो भी हिसाब होगा तो ही मिलेगा। तो ही मिलेगा, तो ही मिलेगा। समझ बदलना है, मगर वो समझाने वाले का संयोग आएगा तब वो समझ बदलेगी। तो अल्टीमेट संयोग पर आधारित है। अल्टीमेट क्या है? संयोग पर आधारित। मगर अगर उसको वास्तव में जानना है तो वो संयोग भी आएगा, मगर वो उनके टाइम पे नहीं आएगा। हाँ, टाइम फैक्टर मेन है। समझना है तो समझाने वाला आ जाएगा, अगर नहीं समझना है या मैं जो समझ रहा हूं वही ठीक है, मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है, तो भगवान भी उसे नहीं समझा सकते। ऐसा है। इसलिए उसे दर्शनावरण कहते हैं। आवरण, आवरण, कवर, दर्शनावरण।
यदि हमें समझने की भावना है, लेकिन हमारा संजोग ऐसा नहीं है कि हमें समझाने वाला कोई हाँ। अभी हाजिर हो, अभी हाजिर हो। या फिर एक ऐसा होता है कि आगे का समझना है लेकिन वो उतने डेवलप हमें कोई अगर मिलता नहीं है, ऐसा हाँ, कुछ ऐसा तरह भी होता है। तो उसके लिए फिर क्या करना होता है? भावना ही करनी है। भावना ही मिल जाएगा, है सही, मगर वो आपका टाइम फैक्टर हिसाब नहीं है। नहीं है तो वो हिसाब का ऋणानुबंध बांधना हाँ, पड़ेगा। ऋणानुबंध वो अपने आप है ही। आपको भावना हुई मतलब वो चीज है ही, मगर टाइम फैक्टर सब मेन है। सभी एविडेंसेस के अंदर टाइम फैक्टर मेन है। जैसे अभी आम खाने की भावना हुई तो अभी नहीं मिल सकता है, उसका जब टाइमिंग आता है, फरवरी मार्च गर्मी का मौसम जब शुरू होता है तो वो संयोग अपने आप है। मगर आपको भावना हुई है तो अवश्य होगा 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 ही, नहीं तो आपको भावना ही नहीं होती। ये सब बहुत हुई साइंस है, बहुत हुई साइंस। तो जिन जिन चीज़ों की हमें भावना होती है, क्या हमें उन्हें एक संकेत की तरह मानना चाहिए कि हाँ। ये हमारी ज़िंदगी में होने वाला है, या फिर हाँ, होने वाला है। एक तरह से ये हमारी प्रकृति की इच्छाएं हैं? इच्छाएं हैं, उसको हाँ समझ सकते हैं आप। है, कभी हम रास्ते में जाते हैं, कोई खाने की चीज़ देखते हैं, कोई फल देखते हैं, उसी टाइम हमें वो लेने की खाने का मन होता है, मगर हमें इतने हमारे काम में बिजी होते हैं तो ये व्यवहार नहीं हो पाता है। और अब जैसे ही घर पे जाते हैं तो वो चीज़ घर पे आ गई होती है ऑलरेडी। जैसे केले खाने का मन हुआ मगर आप रास्ते में नहीं खाएंगे, या अभी इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जैसे ही आप घर पे जाएंगे तो केला उन्होंने ला के रख दिया होता है। तो इसी को परमाणु का साइंस कहते हैं ना, परमाणु का साइंस। कि ऐसे परमाणु हम अपनी प्रकृति में भर कर लाएंगे, हाँ, तो ऐसे ही भर कर संजोग लाएंगे। मिलेंगे। मिले एक एविडेंस आया ना, आपको विचार आया कि मेरे को ये खाना है, ये विचार आया मतलब कि वो परमाणु है, तभी तो विचार आता है। हाँ, yes. बहुत बार क्या होता है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं। जैसे मैं ऑफिस में काम करता हूँ हाँ। कि मैंने कोई अच्छा काम किया या ऐसा कोई कार्य किया, मतलब जिसमें मैंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, और उसकी वजह से मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत बिल्ड हो जाते हैं। उनका रिस्पॉन्स भी आता है बट वो मेरे एक्सपेक्टेशन के मापदंड पे नहीं होते। मैंने हाँ। कुछ एक्सपेक्ट कुछ और किया था, मैंने कुछ और किया, और किया वो कैसे मिसमैच हो गया, वो मैच कैसे हो गए, और वो एक्सपेक्टेशन भी बिल्ड हो गया, उन्होंने नहीं किया, उसकी वजह से मेरे दिमाग में काफ़ी वाइब गलत आ जाते हैं कि नहीं यार अभी वो मेरे को वैल्यू नहीं करते हैं। हाँ, वैल्यू नहीं करते, ऐसा होता है अपने को होता है, कद्र नहीं की। हाँ, तो सेटिस्फेक्शन कैसे लगा कोई भी चीज़ में? अपेक्षा जब बियॉन्ड लिमिट हो जाती है, नॉर्मल हर एक चीज़ का नॉर्मलिटी होता है। हम हमारी ओर से एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, मान लेते हैं। सबसे पहले सामने वाले का एक्सपेक्टेशन है वो तो आप जानिए, आपकी दृष्टि से बहुत बढ़िया काम किया है और उनकी दृष्टि में इसका कोई वैल्यू भी ना हो, या इसमें क्या बड़ी बात है, आपने आपका काम किया है, इसमें क्या बड़ी बात है। और कभी ऐसा भी बोल दे आप करते क्या हो, काम तो करके दिखाते हैं हम, मगर उनकी दृष्टि से ऐसा ही होता है, आप करते क्या हो। तो दुख वो नहीं देता है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो नॉर्मलिटी से ज़्यादा है, वो नॉर्मलिटी से ज़्यादा है
तो वो अचीव नहीं होता है तो अपना ही एक्सपेक्टेशन हमें दुख का कारण बनता है। मगर हमारी सोच क्या है कि वो मेरे को समझ नहीं पाया, इसने मेरा वर्क का एप्रिसिएशन नहीं किया, इसका वैल्यू नहीं किया, हम ऐसा सोचते हैं। तो आप दोनों आपकी दृष्टि से सही है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप गलत हैं कि आप वो गलत हैं, मगर जो हुआ वो आपके कर्म के हिसाब से हुआ। और आजकल सभी इंस्टीट्यूशन में या कोई भी फर्म है कहीं भी, वहाँ चमचागिरी और दादागिरी बस ये चलता है। हम क्या समझते हैं कि हम अच्छी तरह से सिंसियरली हमारा कार्य करें तो उसका वैल्यू है, मगर उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। उसको कौन हाजी हाजी करता है, उसकी कौन बड़ाई करता है, वो आदमी उसको अच्छा लगता है। काम थोड़ा कम करेगा तो चले लेगा वो। तो ऐसा होता है, ये आजकल के मनुष्य का ऐसा एक नेचर बन गया है कि आज आप मेरे हेल्प में है तो आप अच्छे हैं, अगर आपसे कोई जल्दी अच्छी हेल्प करने वाला आदमी मिल गया तो अब आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो जाता है। जय सच्चिदानंद। अपना टाइम हुआ है 5:30 बजे। अब ऊपर हॉल पर 5th फ्लोर जनरल सत्संग होगा, उसमें भी आप बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मगर इतना ही समझना है कि ये जो विज्ञान है उसको सिर्फ समझना है। और कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कुछ भी बिहेवियर कर रहा है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल एट ऑल।